ये मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या क्या बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास है, कह दो, ऐलान करो। AIM-PLB पहले फतवा जारी करके कांग्रेस MVA को समर्थन जारी करती है और फिर उसके बाद कहती है कि जो भाजपा को समर्थन देगा उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। Ladies and gentlemen, there is a reason why we have seen Katenge to Batenge being reiterated. There is a reason why Devendra Fadnavis said this is a battle between vote jihad and dharam yuddh. Because the story now is far bigger. कि मुसलमान एक साथ हो जाइए, मुसलमानों को कांग्रेस के लिए वोट देना होगा. The story, ladies and gentlemen, is far bigger. Because they are not just eyeing Maharashtra, they are eyeing Delhi. They believe that the moment they win the Maharashtra elections, they will be able to conquer Delhi. Narendra Modi will be gone. Narendra Modi is going to be gone from Delhi. It's going to be their hukumat in Delhi. Before you hold me guilty, of putting out what many would say is just propaganda and lies and anything else, I want to tell you that this has been said by Maulana Khalilur Rahman Sajid Nomani, who is the spokesperson of the All India Muslim Personal Law Board. He's talking of vote jihad. He's telling you more about who the real heroes of vote jihad also are. And he's also divulging this entire Chalo Delhi program by the All India Muslim Personal Law Board and its allies, which are the Congress, which are Uddhav Thackeray, which are Sharad Pawar. We are breaking those reactions first up on this edition of The Nation Wants to Know. Before we move ahead, listen in to why vote jihad is just another subtle warning. The real target, ladies and gentlemen, is the national capital and to overthrow the Narendra Modi government from Delhi. और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले. So if we defeat the BJP in Maharashtra, the Modi government will form and we will have our own government. The masks are off. The entire mask of the Congress party, ladies and gentlemen, now is off. I quickly want to say good evening to Radhika Khera, who's the BJP's national spokesperson. We also have Krishna Hegreji, who represents the Shiv Sena Shinde faction. Shashank Shekhar Jha is a noted lawyer, and I'm told he has some very, very strong opinion on the entire issue. And versus them this evening are Akhilesh Katiyar, the national spokesperson of the SP. Imran Ahmad Ali, who's a lawyer and a political analyst. He does lean towards the Congress. But I want to begin by asking Rashid Sharif ji, who's the president of the SIMPLB right now. Rashid ji, तो अब तो आपका पूरा गेम प्लान साफ हो गया है, लेकिन असली टारगेट आपका दिल्ली है, क्योंकि 2024 में जो नहीं हो पाया कि नरेंद्र मोदी वापस सत्ता में आ गए 240 के बावजूद, अब आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद के बाद उनको हराकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ जाए। ये आप लोग कब से पॉलिटिकल पार्टी बन गए सर? ये सबका हक है और हर इंसान अपनी राय रख सकता है इसमें। आप देखिए कि जो हिंदू खतरे में कब तक है, ये जरा मैं जानना चाह रहा हूं कि हिंदू आकर प्राइम मिनिस्टर हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, सीएम हिंदू, प्रेसिडेंट हिंदू, पूरे स्टेटों में गवर्नमेंट हिंदू,
तो हिंदू खतरे में कहाँ है? क्यों ये लोग को डरा रहे हैं? और क्या हिंदू भाई डरने वाला है? बार बार है तो आप बात करेंगे हिंदू खतरे में है, आप तो आप धमकी देंगे सर, आप धमकी देंगे, आप ये कहेंगे कि जिसने भी भाजपा के लिए, जिस भी मुसलमान ने वोट किया है, जिस भी मुसलमान ने भाजपा के लिए वोट किया है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। मतलब ये किस तरह की राजनीति हो रही है? खुलेआम हिंदू वर्सेस मुसलमान, और इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अब खुले तौर पे आ गया है। ये नहीं सर, ये मैडम हम लोग नहीं कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, ये किसका नारा है? ये बटेंगे तो कटेंगे। कौन काटेगा? हिंदू भी है या मुसलमान भी है? कौन काटेगा? क्यों ये गलत ये बयानी क्यों हुई? मैं हमारे इलेक्शन कमीशन से साहब से बात करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में तो किसी की जबान को कोई लगाम नहीं है। आप अगर सज्जाद नुमानी साहब अगर कुछ बोलते हैं तो डिबेट चालू हो जाती है। हाँ, वो लोग अगर बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, सिर्फ हम इसी पे रहेंगे, सबका साथ सबका विकास। चलिए करिए। हाँ, तो क्या दिक्कत है? आप लोग मानते हैं सबका साथ सबका विकास में, आपको दिक्कत होती है कि मुसलमान क्यों भाजपा को वोट दे रहा है? जिस मुसलमान ने वोट दे दिया आपने, उसके लिए आप धमकी निकाल दी है। किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं ये सब नॉर्मल है। But Imran, is this normal for Rahul Gandhi? I mean, I'm stunned. This was only being discussed in whispers. But the proof now, Imran is out in the open. No, see, first, no candidate fights an election without the intention of winning. So let's not take that to be a statement against anybody saying that, oh, we will form government. Every candidate... What are you saying? Is Nomani fighting this election? Everybody fights Is election. Is Nomani fighting this election? Is the All India Muslim Personal Law Board fighting the election? That is a member of an NGO. NGO? Yes. What does that NGO have to do with the Congress party? Can you tell me? Exactly, that's what I'm saying. I'm saying a statement made by an elected representative to a government and a statement made by a member of an NGO, are they both on the same plane? A member who is elected by all of us is the Prime Minister, Chief Minister, Member of Parliament for all of us. However, this is a law board which is for one section of society. So how are they openly issuing these dhamkis for Muslims who voted for the BJP? How are they openly saying कि सब मुसलमान एक साथ हो जाइए और भाजपा को हराना है? How is that happening? Is that not against the Samvidhan? Is that not against the Representation of People's Act? A personal Muslim law board asking for unity amongst Muslims. Unity amongst Muslims is fine. That is secular. Unity amongst Hindus is a problem, Akhilesh Katiyar ji. No. यही आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड दिखाता है. This is your fake secularism. Fake secularism. No, Akhilesh ji, खामोश क्यों हैं आप? One second, let me just finish. Akhilesh ji, 9 candidates that they've supported, out of them only 20. आप एक लोगों को बंद कराए दीप्ति जी, तब मैं बोलूं ना आपसे। अरे आप सब तो एक साथ है ना, आप सब एक ही पार्टी में है ना सर, एक ही अलायंस में है। अब आप वेट करेंगे दूसरा खामोश होगा तो हम बोलेंगे क्या? नहीं, एक मिनट बात तो सुन लीजिए। बोलिए। ये जो बयान है, ये इस बयान से किसको लाभ हो रहा है? ये जो नुमानी साहब का जो स्टेटमेंट है, ये किस लिए है? चुनाव बीच में है और इससे किसको लाभ होगा, इससे क्या वातावरण बनेगा, ये पूरा देश जानता है। बताइए ना, हम नहीं जानते सर, हम लोग नादान हैं। आप बताइए आप लोग राजनीति खेलते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति खेलते हैं। बताइए किसका लाभ होगा? तरीके से चुनाव को हिंदू मुस्लिम पे लेके आए। हाँ भाई, जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को वोट देना चाहिए उपलब्धियों के बिहाफ पे, इस तरीके के बयान की हम लोग तो समर्थन नहीं कर सकते। वोट मिलना चाहिए काम पे, वोट मिलना चाहिए। आपने जनता की सेवा करके हुए जनता को क्या दिया है? इस तरीके के बयानों की कोई गुंजाइश मुझे नहीं लगता कि ये लोकतंत्र में इस तरीके के बयान कौन होते हैं ये सारी बातें बोलने वाले? क्यों अखिलेश यादव खामोश हैं? क्यों अबू आजमी खामोश है? क्या उद्धव ठाकरे खामोश है? क्यों मुझे बताइए ना, आदित्य ठाकरे खामोश है? क्यों राहुल गांधी खामोश है? अब कम्युनल नहीं है कुछ? नहीं, हम कोई भी असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक कोई भी व्यक्तिगत बयान देता है तो वो बयान इस तरीके के हमें नहीं लगता कि वो ठीक है।
जी। अरे तो बोलिए ना लेकिन खुल के चुनाव सर, है, ऑल इंडिया चुनाव में आप मुस्लिम वोट मांगे, पर्सनल लॉ आपने बोर्ड जनता को कम्युनल क्या है, दिया, आपने कितने उसका वादे इस किए थे, चुनाव वो से आपने कोई पूरे लेना किए देना नहीं। नहीं है। आप ये लोग कहेंगे आप, इमरान आप कहेंगे, अखिलेश आप कहेंगे, Why not? राशिद जी तो ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन आप कहेंगे, बताइए। नहीं मैडम, मैं भारतीय बिल्कुल जनता कहूंगा कि पार्टी बिल्कुल वहां हक है, वोट मांग आजाद रही नुमानी साहब का हक है, है। उनको अपनी उपलब्धियों पे, देश के में उन्होंने जो डिलीवर किया उस पे वोट मांगना है। अरे ये तो भाजपा के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं सर, ये आप ही लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं ना, ये तो सब आपके अलायंस है, आपकी डील हुई है। नहीं, हमारे लिए हम समाजवादी लोग हैं। हाँ। हमारे लिए जात धर्म संप्रदाय पे हम वोट नहीं मांगते, हम कमाल अपनी है। उपलब्धियों पे वोट मांगते हैं। तो ये हो गया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना रहा, राधिका किसी को पता ही नहीं क्यों इनके लिए वोट मांगे जा रहे, कह रहे हमसे मत पूछिए, हमें तो कुछ नहीं पता है। एंड दे बिलीव दैट पीपल आर फूल्स, they can't look through this. Radhika. This is why every time the people of India and every state have been giving them a befitting reply, and they are the ones who've been coming out as fools. Now, Maulana Sajid Numani's statement is not just an insult to democracy. It is a direct attack on India's fabric of unity. His call for vote jihad and social boycott exposes the toxic communal agenda of the so-called secular leaders of the Mahavikas Aghadi. Now, what democracy does he talk about when he openly rallies for one community's dominance while demonizing the others? I don't know what sort of democracy and this is. Now, Sharad Pawar, Uddhav Thackeray and Rahul Gandhi are so desperate for power that they're aligning with those who are preaching hatred and division, and all of them are mum. None of their leaders, none of their spokespersons have come out to question or to say that, no, we do not believe in this. So this is not about democracy or constitution. This is about communal polarization, which we are seeing, which is undermining the very social fabric of Maharashtra and India. While the Bharatiya Janata Party is standing firmly and fighting against this dangerous narrative, we also call for the people of Maharashtra to choose a government that represents all and not one that plays vote bank politics. And यहाँ पे मैं सुन रही थी, कह रहे थे कि हुक्का पानी बंद हो जाएगा। तो आज मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहती हूँ, जब आप हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, तो जब आप हज की सब्सिडी लेते हैं हमारी सरकार से, वो लेना बंद कर दीजिए। जब प्रधानमंत्री आवास योजना से आप घर लेते हैं, तो वो भी लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो हम काफिरों का पैसा है। तो आप सब कुछ बंद कर दीजिए। आपके पास दो तरीके नहीं हो सकते। यहाँ पे आप कहे कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा मुसलमान, तो आप उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे। तो यही लोग जो बैठे हुए लिस्ट निकालते हैं, इन्होंने कितनी हज सब्सिडी ली और कितने फायदे गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए हैं। तो ये इस तरीके से, क्योंकि अगर कोई मतलब आप किसी से उसका हक छीनना चाहते हैं कि वो किसको वोट देना चाहता है, राधिका, आपकी बात से मैं देख रही हूँ राशिद शरीफ जी बहुत परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं सर? बिल्कुल मैडम, परेशान होने की बात है। ये सरकार जो दे रही है, हाँ। वो भी मत लीजिए, घर दे रही है वो भी मत लीजिए। अरे भैया, ये हुकूमत है। आप हुक्का पानी बंद कर दे तो ठीक है, सब साथ में रहते हैं। आप काबुल जब आप हुक्का पानी बंद कर रहे हैं तो ये छोड़ने की भी औकात रखिए जनाब। फिर काफिरों के पैसे से कुछ मत लीजिए। और जहां तक मैं जानती हूँ, हज तो आपको अपने पैसे से करनी होती है, काफिर के पैसे से तो कर नहीं सकते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जो लेके चल सकता है, उसको लाना। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? आप तो मुसलमानों को तो धमका रहे हैं। छोड़ता है, उसको छोड़ता है, कोई जरूरत नहीं है। मत लीजिए ना, क्यों तकलीफ हुई? अब मत लीजिए सब्सिडी, मत लीजिए कोई बेनिफिट, अपना हुक्का पानी बंद कराइए। बैठ के मत कीजिए। मुसलमान कोई 1000 2000 नहीं है हिंदुस्तान में, करोड़ों मुसलमान है, करोड़ों मुसलमान। आज मुसलमानों को दिख रहे हैं आप अपने मुसलमान भाई बहनों को क्या समझते हैं जिस तरीके के आप फतवे जारी कर रहे हैं। आप खुद मुसलमानों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो आप जैसे लोग हैं, और इन जनाब जैसे लोग हैं जो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। हिस्सा का है हमारा हक का है, हमारा हिस्सा का है। अरे राशिद जी, अब आप हक की बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज बताइए। देखिए राधिका ने क्या किया कि आपको एक्सपोज कर दिया। आप एक पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट करते हैं सर, आप अपने आप को एनजीओ के बोलते हैं, लेकिन आ जाते हैं पॉलिटिक्स में सीधे राहुल गांधी के साथ। लेकिन मुझे ये बताइए, आपको किसने ये बता दिया है कि सारे मुसलमानों का देश में ठेका आपने ले रखा है? सर ये बताइए ना, क्यों मुसलमान आपको सुने? हमारी बदकिस्मती, हमारे पास लीडर नहीं है मैडम, हमारी बदकिस्मती है मौलाना है हमारे ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अगर उसकी भी नहीं सुनेंगे तो किसकी है ना सर? आपके नेता है ना राहुल गांधी, आपके नेता है उद्धव ठाकरे, आपके नेता है शरद पवार, आपके नेता है नाना पटोले, खुद नोमानी जी इन सबका नाम लेते हैं ना, कृष्णा हेगड़े जी। हमारे से किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं। अरे क्या बात करते हैं आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तमाम। आप सोशल मीडिया पे जाइए सर, नोमानी जी ने पूरे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सारे इन
कैंडिडेट्स की लिस्ट लगा रखी है कि इनके लिए वोट दीजिए। आप तो वोट मांग रहे हैं ना इन सब के लिए। सो कृष्णा हेगड़े, द प्रिटेंसेस ऑफ whoever said this is about development, this is about the मोहब्बत की दुकान, this is about the संविधान, this is only and only about the Musalman factor, the Musalman vote. Krishna Hegde. No, it is a little deeper than that. It is more a sinister conspiracy, because what Sajjad Nomani said was, अगर महाराष्ट्र तो एक बात है, हम तो केंद्र तक जाएंगे, वंशी सरकार, and I think this is an extremely strong state, and such sign, this kind of sinister design should not be tolerated. And let me tell you, and now earlier he was threatening 80% of Hindus with reservation. Now he's threatening the other Muslims also, saying that जो मुसलमान ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया, उसका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए. अरे, will his own people listen to him? I don't think his own people will listen to him. And if he wants to actually demonstrate his strength, then I challenge Sajjad Nomani. He should start his own party. Let him not go under the guise of an NGO or the All India Muslim Personal Law Board. He should start his own political party and come and fight the election. And then we'll show him who is more strong and how many seats he gets, who he doesn't get. And how much strength he has within his own community, he will know exactly. So I challenge Mr. Sajjad Nomani that come onto the field, form a political party and show us your strength. Don't talk about sinister designs by aligning with Uddhav Thackeray and talking about, Maharashtra and talking about then heading towards Delhi. No one is going to tolerate all that. But you should be very, Krishna Hegde ji, you must be wary of their plan. Before I get in Shashank to come in here, I want to ask one quick question to Rashid Sharif ji. ये important question है. Rashid जी, मुझे बताइए कि दिल्ली तक कूच का क्या प्लान बना है आप लोगों का? कैसे पहुंचेंगे सर दिल्ली तक? दिल्ली में तख्ता पलट कैसे करेंगे? बिल्कुल मैडम, ऐसा पहुंच जाएंगे दिल्ली तक. कैसे पहुंचेंगे सर? योगी जी ऐसा पहुंच जाएंगे मैडम. आप योगी जी बताते हैं कि बेटी को बचाना है, आप रोटी को बचाना है, मंदिरों को बचाना है, जमीनों को बचाना. किसको डरा रहे हैं आप? बेटी को बचाना किसको? कौन लेते लोग? सर डराने वाले आप हैं सर, डराने वाले आप ही लोग हैं और नेता लोग हैं. आम जनता नहीं डरती है आपसे सर, तभी तो जनता को आप धमकी देते हैं ना खुलेआम कि अगली बार भाजपा के लिए वोट करेंगे तो आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा. वाह क्या बात है मैडम, वाह क्या बात है, बहुत अच्छे. तो आप ही के नेता ने कही है सर, उनको ही वाह वाही करिएगा, हमें मत करिएगा. नहीं, एससी से लड़ा, एससी ओबीसी से लड़ा. अरे कौन लड़ा रहे हैं लोगों को महाराष्ट्र में? हमारे पीएम साहब बोलते कि एससी है तो एससी से लड़ा रहे, एससी है तो ओबीसी. ये लोग नहीं लड़ा रहे, ये लोग लड़ा रहे मुसलमान हिंदू. अच्छा, कर रहे मुसलमान हिंदू. लेकिन ये तख्ता पलट का जो पूरा प्लान है सर, अब तो खुल गया है ना, अब तो आपका ये प्लान खुल गया है. अब मुझे बताइए कैसे, क्या करेंगे आप, कैसे पहुंचेंगे दिल्ली? बिल्कुल पहुंच जाएंगे मैडम. इसी तरीके से अगर पूरे हिंदू मुसलमान करते करते दिल्ली तक पहुंच जाएंगे. शशांक, द प्लान इज क्लियर. ऐसे ही पहुंचेंगे, हिंदू वर्सेस मुसलमान करते करते. शशांक. दीप्ति जी नमस्ते, और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार. दीप्ति जी देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है ये नई नहीं है. हमने देखा कि जो देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, उसमें एक इकबाल था जो कि पोयम लिखता था पाकिस्तान के कसीदे लिख के, एक सैयद अहमद खान था जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना ली, और एक जिन्ना था जिसने मुस्लिम लीग बना ली, और इन तीनों के गठजोड़ ने आखिरकार पाकिस्तान बना लिया. आज हम वही चीज देख रहे हैं. पीएफआई का मॉडल 2047 के लिए बड़ा क्लियर है कि किस तरीके से एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है या भारत के बंटवारे करना है इस्लामिक राष्ट्र के नाम पर. जो लोग भी भारत की अखंडता को अगर उसका समर्थन नहीं करते, मेरा मानना है कि ऐसे सभी चीजों को हमें दरकिनार करना चाहिए. अभी मुझे आश्चर्य लगता है कि इस देश में आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जबकि हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड को हटा के आपने हिंदू सिविल कोड ला दिया 1955 में. तो क्यों हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है आज भी इस देश में? जब आपने इस देश के वेदों को और पाठशालाओं को बंद करवा दिया, वैदिक पाठशालाओं को, तो क्यों आज भी मदरसे और कॉन्वेंट स्कूल्स सरकारी पैसे से, जो कि हिंदू के टैक्स पेयर से पैसे से, वो अभी भी चल रहे हैं?
तो मेरा मानना है कि ये सारी विभाजनकारी नीतियां हैं और अब जो हम देख रहे हैं वो उसका एक प्रारूप देख रहे हैं और ये इसी तरीके से बढ़ता है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे, सेक्युलरिज्म के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे आगे बढ़ता जाता है और फिर एक दिन आता है जो आज हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक सरकार चल रही थी, अचानक से उसे पलट दिया गया और पलटने के बाद आज कह रहे हैं कि उसमें सेक्युलर हटा दो क्योंकि 90% मुसलमान हो गए। तो वही माहौल इस देश में बनाया जा रहा है। जैसे ही नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मुसलमानों में भी जातियां होती है और कई सारी जातियों का उत्पीड़न हो रहा है, हमें उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट कहती है काफी लोग पिछड़े हैं। तो नहीं, तभी उन्होंने बात कर दिया कि किस तरीके से भाजपा को हराओ, भाजपा को वोट देने वालों का बॉयकॉट करो। तो ये 1947 नहीं तो और क्या है। अब ये नॉर्मलाइज नहीं हो सकता ना, कहीं तो दिस थिंग हैज टू बी कॉल्ड। बिफोर आई गेट यू कृष्णा हेगड़े जी, Radhika, lot of our viewers today are curious. They want to know that what is it that the central government will do now? See, because this is against the Samvidhan. This is against the Constitution. There is an open call not just for vote jihad. There is an open call now for a social boycott of those Muslims who voted for the BJP. See, let me make one thing very clear. No one will have to do anything. The government will not have to do anything because it is the people and the voters of Maharashtra who will reject this divisive propaganda and choose a government that represents all. And that will be a befitting answer. We saw what they were doing in Haryana. It was not very different. They were trying to divide the Hindus. They were doing Jat, non-Jat, and they were going to divide the SCs, STs. What happened in Haryana? Haryana created history, created a record. Never has any government come back to power for 3 terms in a row and with even better seats than the previous time. When everyone said, वहां पे यही कहा जा रहा था ना कि किसान खतरे में है, बेटी खतरे में है, हर जगह खतरे में था. But the reality was that it was the Congress party and the divisive agenda which was खतरे में. We saw how they played politics by putting the gun on the shoulders of our wrestlers, our pehlwans and kisans, all the drama that they created, when in reality कोई खतरे में नहीं था और कोई परेशान नहीं था. In a similar manner, we are seeing things unfold in Maharashtra. Okay. Now here things are a little worse because now, like they say, desperate times call for desperate measures. For desperate measures, yes. अखिलेश जी, क्या अभी भी संविधान खतरे में है सर? हाँ या ना बताइएगा. नहीं, संविधान खतरे में है या नहीं है, हम तो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता वोट करेगी जिन लोगों ने महाराष्ट्र की जनता के हितों के खिलाफ वोट किया, हितों के खिलाफ काम किया. देखिए, आप ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि संविधान खतरे में या नहीं है, जबकि राहुल गांधी रोज कहते हैं संविधान खतरे में. इमरान, योर एलाइज डोंट एग्री विद दिस. देखिए ना, मास्क ऑफ हुआ तो आपको सब एलाइज भी छोड़ देंगे. जिस दिन इस देश में आर्थिक Imran, I have limited time. Imran, 10 seconds. The only thing I want to say is that the only secular fabric is shown by the support to the MVA. Out of 269 candidates, 169 are Marathas and OBCs, 40 are Jains. Don't divide people, Imran. Don't divide people. Please don't sit here and do this. No. I'm the only one saying that this is the secular fabric. Krishna Hegde ji, 5 seconds. 5 seconds, sir. देखिए, 13 साल जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने, संविधान खतरे में नहीं था. 11 साल होने को आया, प्रधानमंत्री बने तो संविधान खतरे में नहीं था. गए 1 साल में राहुल गांधी ने पॉकेट से संविधान निकाला और बोला खतरे में है. अरे बाबा, ऐसा होता नहीं. देश की जनता होशियार है. और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता को कहना चाहता हूँ, दिल्ली बहुत दूर है. पहले तो आप महाराष्ट्र और मुंबई के गलिये में तो घुसिए. ठीक है, आप कहते हैं दिल्ली बहुत दूर है. इमरान मुस्कुरा ले, लेकिन राशिद जी फिर थोड़ी टेंशन में चले गए. शशांक, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है. अपॉलॉजीज. I will, continue to track this story. Radhika and all gentlemen, thank you so much. We'll track that story much more on the other side of this very quick break.